Yes, please start. Okay. Good evening, everyone. On behalf of Arogya Bharati Paschim Maharashtra Prant, I warmly welcome you all to today's Ayurveda Abhyasanam National Online Series. We are truly delighted to have such an enthusiastic audience joining us. Myself, Dr. Jaykumar Sadashivade, and working as Associate Professor and Head of Department at Vasantdada Patil, Ayurvedic Medical College and Institute of Yoga, Sangli. Our aim through Ayurveda Bhasanam National Online Lecture Series is to create a platform for a knowledge sharing and meaningful discussion. As we all of us know that whenever we are going to start our Ayurvedic programs, we start with our Dhanvantari Stavan. So I ask to everyone, fold your hand for the Dhanvantari Stavan. लोके जरा भयमृत्युनाशं दातारणी विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं चलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्रां शकद्वैविलसन् मौलिमं भोजनेत्र कालाम्भोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारु पीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिक्तं निखिलगदवन प्रौढदार्तिवेदं प्रौढदार्तिवेदं प्रौढदा. Thank you everyone for the Dhanvantari Stavan. Today's topic for the lecture is clinical stories that matters, uh, how to write and publish Ayurvedic case studies. For today's webinar, we're having a guest, Dr. Girish Tilusar. It's our privilege to welcome Dr. Girish Tilusar, who is MD PhD अच्छा. and working as a professor at Department of Health Sciences, Savitribai Phule Pune University, Pune, and principal investigator of Ayush Center of Excellency for Complementary and Integrative Health. He is a renowned Ayurveda researcher, educator, and integrative health expert. He has made significant contribution to evidence-based Ayurveda, clinical research, public health, and integrative medicine. With extensive experience in interdisciplinary research and numerous national and international publications to his credit, he has played a pivotal role in bridging a traditional Ayurvedic wisdom with contemporary scientific approach. Dr. Girish Tilusar is the executive editor of Journal of Ayurveda and Integrative Medicine. We are honored to have you, Dr. Tilusar, inaugurates today's session and share his valuable insight with us. Please, Dr. Tilusar. नमस्कार. नमस्कार. सर्वप्रथम इस मीटिंग में सहभागी हुए सब चिकित्सकों को मेरा प्रणाम। और आरोग्य भारती का ये इनिशिएटिव जो है, ये उपक्रम बहुत अच्छा उपक्रम है। हम सब लोगों को निरंतर प्रशिक्षण देने वाला ये उपक्रम है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम आरोग्य भारती के
सभी कार्यकर्ता अधिकारियों का मैं सहर्ष धन्यवाद देना चाहता हूँ और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। आप सब लोगों का भी यहाँ अभिनंदन और स्वागत है। आयुर्वेद ये लोगों के मन में है। लोग आयुर्वेद आयुर्वेद ये जिसको बोलते हैं इज सिस्टम दैट वाज शेप्ड बाय पीपल। आयुर्वेद की जो परंपरा है कि जैसे आर्ष परंपरा है, वैसे आयुर्वेद ये लोक परंपरा भी है। तो आर्ष परंपरा, क्लासिकल हेल्थ सिस्टम, एज वेल एज फोकलोर नॉलेज इंटीग्रेशन, ये दोनों का अद्भुत संगम आयुर्वेद में दिखने के लिए मिलता है। और लोगों के मन में एक कोई तो भी आयुर्वेद के चिकित्सकीय हर लोगों के मन में है। पीपल हैव अ सक्सेस स्टोरी इन देयर माइंड, हेंस दे प्रैक्टिस आयुर्वेद। तो इसलिए ये सक्सेस स्टोरी अभी तक हमारे मन में है, हमारे दिमाग में है। किसी के तो भी आयुर्वेद के चिकित्सक का अच्छा सक्सेस स्टोरी हमारे मन में है, इसलिए कई लोग आयुर्वेद फॉलो करते हैं। सैकड़ों लोग, लक्षावधि लोग आयुर्वेद फॉलो करते हैं। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी, as per changing times, we need to convey, we need to document these success stories in terms of very solid logical flow, and the approach is writing case reports. Case reports is one of the important aspects that shapes science. Case reports is actually a learning shared by a clinician to his or her fellow colleagues. Case report is not an evidence what we create, but case report is certainly a learning what we share with others. Thus, case reports gives a confidence to our fellow clinicians that look, something can happen. Case report is also discussion of very practical aspects followed by that clinician. And hence, case report is all detailing of what happened, how a particular thought was applied in a particular clinical context, and that's how we got a response to particular intervention. Thus, case report actually narrates an entire story right from the beginning till the latest follow-up. And thus, it is not just about writing the thought process, but also discussing most important question, why, or rationale or logic behind every decision. Why a particular clinician diagnosed a case, what was the logic, what were various options or differential diagnosis, what we do in our real life clinical practice. Why a clinician implemented a particular approach. What were the interventions, how these interventions were followed and assessed using various outcomes. Now, those outcomes can be many. For example, those outcomes can be patient-reported outcomes. Those outcomes can be clinician observed, very systematically documented records in terms of clinical assessment, in terms of some of the logical investigations, etc. Thus, a clinician need to provide a detail, and thus detailing is possible only when we document a particular case in a very systematic manner. Thus, we don't know whether we are going to write a case report after a few months or few weeks. Hence, we need to have practice of very systematic documentation that can create more and more such case reports. Case reports can also be of our success as well as our failures. Case reports can be also
something unique cases, what we have diagnosed and what we have treated. My friends, as and when we are discussing this, there are number of case reports on PubMed database. They are much less than the number of Ayurvedic colleges that exist in our country. For example, I'm sharing a link of all Ayurveda related case reports. There can be many, but at this point, whatever case reports, what we can read on PubMed. And hence, it is very important for us to read good case reports in authentic journals, because there are so many types of journals, some bogus journals, predatory journals, and I'm sure today's speaker is well versed in all such documentation, and he has published a lot. Ankur Tanwarji, and Ankurji will discuss about all those important aspects of reading good cases from authentic journals and writing good cases in authentic journals. Otherwise, there is a phenomenon, garbage in, garbage out. If we don't read good, then we will not be able to produce authentic case reports. With this, I congratulate again the organizers, and again Ankurji for very important initiative. I'm sure you all will at least read and write good case report. That will become an important aspect towards the entire landscape of Ayurvedic publication. Thank you very much. And if you need any kind of further information, I will be there around, and then we will discuss something more. Over to you, Ankurji and organizers. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your valuable guidance and valuable insight sharing with us. Moving to forward, today's webinar is on clinical stories that matter, how to write and publish Ayurvedic case studies. This is a very important topic to all undergraduate as well as postgraduate students. Well-written Ayurvedic case study turn everyday clinical work into shareable evidence that shows what actually works, in whom and how. They help bridge classical Ayurvedic concept with a modern clinical language, train student in a real-world reasoning, and provide early scientific support that can later lead to larger research and wide acceptance of Ayurveda in healthcare. Now, it is my privilege to introduce our esteemed speaker for today, Dr. Ankur Kumar Tanwar sir. He is working as Associate Professor in the Department of Kriya Sharir at Divya Jyoti Ayurvedic Medical College and Hospital, Ghaziabad, Uttar Pradesh. With 14-year experience in academic, he has also contributed immensely through the clinical wing. His specialty are skin disorder, reproductive health, and sleep health. He had got many awards, including Indra Award, Dr. B.R. Ambedkar Award. We are indeed honored to have him with us today. Welcome, sir. The flow of today's session will be as follows. Firstly, we will have the presentation by our resource person, followed by the question and answer session. I encourage to all participants to drop your question in the chat box, and we will take them at the end. A gentle reminder to all, kindly keep your microphone on mute during the session to avoid background disturbances. Please use the chat option for question, and we will ensure they will address at the end. So without taking much time, let's begin. It's my honor to invite Dr. Ankur Tanwar sir to take over the session and enlighten us with his knowledge. Over to you, sir, Dr. Tanwar sir. Okay, sir. First of all, thanks Arogya Bharati for giving me this opportunity to share my view on the session on case report. I also thank Gishtilu sir. First time I doing the presentation in front of Gishtilu sir, and my first case report is published in JAM.
on Shirodhara in 2020-21 around. And not taking much time, just share my presentation. First of all, we understand the importance of case study in Ayurveda, identify the publishable cases which we need to publish and which is not. Structure a case report according to reporting guideline, which is the CARE guideline. Avoid the common mistake in case writing and select the appropriate journal for publication. So these are the content of my presentation: introduction, importance of case study, case selection criteria, principle of Ayurveda case taking, structure of a case study, understanding case study approach, and how to write a case study in Ayurveda. So what is a case study? In simple terms, it is a description of a symptom, detailed description of a symptom, diagnosis, treatment, follow-up, and the outcome in an individual patient. So in a medical case study, a detailed in-depth report on a single patient or a group of a people, group of a patient, which we call as a case series, documenting their diagnosis, their treatment, and their outcome. It highlights the rare diseases, unusual presentation, and the unexpected treatment effect. These studies provide valuable educational insight into the unique case clinical scenario, helping the provider recognize the similar cases. ताकि अगर हम अपने जैसे वी स्टोरी सर ने भी बोला कि हमारे पास बहुत सारे रियल की लाइफ एक्सपीरियंस है, मगर आयुर्वेद में डॉक्यूमेंटेशन की बहुत नीड है। जैसे सर ने बताया कि पबमेड में भी इतने आर्टिकल्स पब्लिश नहीं है केस स्टडी के ऊपर आयुर्वेद में, जितने हमारे पास कॉलेज है आयुर्वेद के, उससे कम ही है। तो मतलब हर कॉलेज से भी केस स्टडी पब्लिश नहीं हो पा रही, अगर मैं ओवरऑल समझना चाहूँ तो। और केस स्टडी मैं जब पीजी में था तो मेरे को सिर्फ यही पता था, उसमें इतना ज्यादा डिटेल नहीं थी, कि केस स्टडी बहुत इजी टू पब्लिश है। इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, जो केस आपके पास आया उसकी बिल्कुल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है, मतलब वो केस यूनिक होना चाहिए बस। तो हमने भी स्टार्ट किया था केस स्टडी लिखना, 2020 पे हमारी केस स्टडी थी शिरोधारा के ऊपर, और उसका इफेक्ट था स्ट्रेस बायोमार्कर के ऊपर, और वो जैम में हमने डाली थी, और अराउंड 1 ईयर लगा था पब्लिश होने में, और इट्स पब्लिश इन जैम। आफ्टर दैट आई आल्सो राइट वन केस स्टडी ऑन माय पीजी टॉपिक which in published in UGC Care Journal. So what is the rare disease? Just like I give you an example, a patient diagnosed with a Guillain-Barré syndrome is managed by the Ayurvedic intervention. Guillain-Barré syndrome is a rare neurological disorder, and if we give the Ayurveda intervention and the patient showing the functional improvement, it is the case report we can publish. Such as Panchkarma and Rasayan therapy we are giving to the patient, and patient showing the improvement. Unusual presentation of a common disease. हम सब जानते हैं कोविड-19 में रिस्पिरेटरी सिम्टम मैक्सिमम होते हैं, मगर अगर आपके पास कोविड-19 का कोई केस है और उसमें स्किन रैशेस हो रहे हैं, रिस्पिरेटरी सिम्टम नहीं है, अनयूजुअल कॉमन मैनिफेस्टेशन है, तो ये भी मे बी एक केस रिपोर्ट के रूप में पब्लिश किया जा सकता है। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिशियल ट्रीटमेंट इफेक्ट। पेशेंट है आपके पास इंसोम्निया का, अनिद्रा का, आपने जटामासी हर्ब के थ्रू ट्रीटमेंट किया, उसकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव हुई, मगर आपको पेशेंट के एंजाइटी लेवल पे भी रिडक्शन दिखा, उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी पे भी इम्पैक्ट दिखा, जो आपका प्राइमरी टारगेट नहीं था, तो इट मे बी द केस रिपोर्ट फॉर द जर्नल। रेयर एडवर्स इफेक्ट ऑफ आयुर्वेदिक इंटरवेंशन। आयुर्वेदा इंटरवेंशन के एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ही कम रिपोर्टेड होते हैं, जो मैं समझता हूँ, मे बी आई एम रॉन्ग। जो फार्माकोविजिलेंस है उसमें भी हमें अगर कोई एडवर्स इफेक्ट मिल रहा है तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए। एज ए क्लिनिशियन, एज ए डॉक्टर, as a researcher, we have to register in a pharmacovigilance cell so that the adverse effect of the intervention is reported. Or if the patient develop a allergic skin reaction following the application of traditionally well tolerated herbal formulation, अगर आपके पास कोई herbal formulation आपने पेशेंट को अप्लाई करने के लिए बोला है और उससे एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है, then it may be the case report.
नोवल एप्लीकेशन ऑफ एन आयुर्वेदिक थेरेपी। आपने शिरोधारा दी, पेशेंट को इंसोम्निया के केसेस में शिरोधारा का इम्पैक्ट था, मगर आपको स्ट्रेस मार्कर पे भी इम्पैक्ट दिखा, सीरम कोर्टिसोल DHEAS, then it may be the case report. The same case report I am published in 2020-21, impact of Shirodhara on biological marker of stress. So a single patient can generate a valuable medical knowledge. जैसा सर ने भी बताया, केस रिपोर्ट के लिए हमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। आपके पास जो सिंगल केस है, वो भी आपका एक केस रिपोर्ट एक पब्लिकेशन में काम आ सकता है। फ्रॉम रोगी टू रिसर्च, हम रोगी से रिसर्च के पॉइंट में भी जा सकते हैं। बस आपको पेशेंट की डायग्नोसिस, उसके ट्रीटमेंट आउटकम, उसके रेयर डिसीज, ये सब चीजों का एक बार असेस करना पड़ेगा कि वो पब्लिश होने लायक है भी या नहीं है। मान लीजिए हम कोई डायबिटीज पे पेशेंट पे इम्पैक्ट देख रहे हैं, डायबिटीज का पेशेंट था, हमने निशान लिखी थी, इम्पैक्ट देख लिया, इम्पैक्ट आ गया। इट इज नॉट ए केस रिपोर्ट, मे बी नॉट ए केस रिपोर्ट, बिकॉज इट नॉट ए रेयर केस, इट नॉट द unique formulation, it's not the unusual effect, it is the common effect. So it is not a report we can publish in a good peer review journal. So what is the level of evidence? If we show in a figure, case report is the base of any study, and the systematic analysis and the meta-analysis is on the top. So for reaching to the top, we need the base. So case report is the base, which help to generate the hypothesis, which help to generate the research topic, research question for the primary study. So why the case study matter? It is the first level of clinical evidence. किसी भी स्टडी के लिए क्लिनिकल एविडेंस के लिए आपके फर्स्ट लेवल, आपके पास यूनिक केस आया, आपने ट्रीटमेंट दी, उसमें इफेक्ट दिखा, तो ये आपका रिसर्च हाइपोथेसिस हो सकता है आगे की स्टडी के लिए। आप इसके बेस पे आगे की स्टडी ट्रायल के लिए कर सकते हैं। जनरेट द न्यू हाइपोथेसिस, डॉक्यूमेंट द यूनिक क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ ए डॉक्टर, ब्रिजिंग द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न एविडेंस। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, हम सब एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की बात करते हैं कि आयुर्वेद में एविडेंस की बहुत जरूरत है, मगर वी हैव टू कंट्रीब्यूट इट ना, हम सबको कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे केसेस पब्लिश करते हैं, सारे डॉक्टर्स हैं, इम्पैक्ट आता है, क्या होता है, मगर वेयर द केस रिपोर्ट, वी हैव टू जनरेट सच एविडेंस टू प्रूव अवर मेडिकल साइंस, वी प्रूव आयुर्वेदा टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। So every patient teach a lesson. A case report share the lesson with the world. हर पेशेंट हमें एक लेसन देता है और एक केस रिपोर्ट उस लेसन को हमें पूरी दुनिया में दिखाने का एक मौका देती है। तो मेन पर्पस क्या है केस रिपोर्ट का आपका? टू रिपोर्ट द रेयर डिसीजेस एंड द कंडीशन, जस्ट एग्जांपल ऑफ गुइलेन-बेरी सिंड्रोम, टू डिस्क्राइब द अनयूजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉमन डिसीज, टू आइडेंटिफाई द अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट आउटकम। त्रिफला कॉन्स्टिपेशन के लिए दिया था, मगर लिपिड प्रोफाइल में भी इम्पैक्ट आ रहा है। टू डॉक्यूमेंट द एडवर्स इफेक्ट एंड द सेफ्टी कंसर्न, एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी एडवर्स इफेक्ट आपका आ रहा है, ये केस रिपोर्ट के साथ साथ आपका फार्माकोविजिलेंस के लिए भी एसेंशियल टॉपिक है। टू इंट्रोड्यूस द नोवल थेरेप्यूटिक अप्रोच, मान लीजिए आयुर्वेद में प्रकृति बेस्ड ट्रीटमेंट में बहुत फोकस होता है, मगर माय पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि आज भी प्रकृति बेस्ड ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं हो रहा है बहुत जगह, मे भी सब जगह हो रहा हो। तो अगर हम प्रकृति बेस्ड पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान भी देते हैं और पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, तो इट मे बी रिपोर्ट टू जनरेट द न्यू रिसर्च हाइपोथेसिस। Observation of a single patient can lead to larger observational study or the clinical trials. To share the clinical experience, the learning, which help the practitioner to learn from the unique diagnostic challenge, treatment decision and the patient outcome. आप अपने केस रिपोर्ट को शेयर कर देंगे तो डोमेन में जाएगा, पब्लिक डोमेन में, साइंटिफिक सोसाइटी को जाएगा, तो हर प्रैक्टिशनर उससे कुछ सीख पाएगा। अगर उनके पास भी केसेस आएगा तो कैसे डायग्नोस करे, उसको कैसे ट्रीटमेंट प्लान करे, कैसे पेशेंट का आउटकम मिल सकता है। तो हर कोई, वी आर इन द लर्निंग फेज and we contribute to the scientific society to contribute the evidence-based practice. A case study is a lower level of evidence. It often provides the first indication of a new disease association, treatment benefit and the adverse effect. तो हमारा केस रिपोर्ट जनरेट करना, उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत एसेंशियल है, ताकि हम जो लेवल ऑफ एविडेंस है, जो बेस है, उससे ऊपर के लेवल पे जा सके। उसके लिए हमें लेवल बेस जरूर चाहिए। तो पर्पस क्या है? जनरेट द हाइपोथेसिस, share the clinical experience and build the Ayurveda evidence base. A case study aimed to document, communicate unique clinical observation that can improve the patient care,
generate the research question and the advance the medical knowledge. जैसे सर ने भी बताया। इंट्रोडक्शन, अगर अब मैं आयुर्वेद की बात करूं, आयुर्वेद इज इंडिविजुअलाइज्ड पेशेंट सेंट्रिक सिस्टम फोकसिंग ऑन द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ each पेशेंट। आयुर्वेद मानता है हर पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, वात पित्त कफा, ड्यूल कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, संप्रकृति भी हो सकता है। मगर इस इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के थ्रू ट्रीटमेंट आज भी, जो मेरे को लगता है, बहुत रेयर है। रोगी परीक्षा फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ डायग्नोसिस, emphasizes the holistic assessment of the patient rather than just the research. A case study act as a bridge between the clinical practice and the research. अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को कैसे पता चलेगा, आपकी खुद का प्रमोशन कैसे होगा, तो थ्रू द पब्लिकेशन। ट्रांसफर द रियल पेशेंट एक्सपीरियंस इनटू द साइंटिफिक नॉलेज। मैं एज ए प्रैक्टिशनर से भी बहुत जगह बात होती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम केस रिपोर्ट कैसे क्यों पब्लिश करें, क्या फायदा। आज के साइंटिफिक वर्ल्ड में हर कोई गूगल सर्च करता है, हर कोई डिसीज सर्च करता है, आजकल गूगल डॉक्टर, हर कोई, बहुत सारे आपको व्हाट्सएप पे आ, मिलते हैं एड्स, गूगल डॉक्टर इमेजेस मिलती है कि डॉक्टर्स से ज्यादा बेटर तो गूगल इन्फॉर्म करता है, तो पेशेंट भी सर्च करता है। अगर आपकी वो केस रिपोर्ट पब्लिश है और पेशेंट सर्च करता है उस डिसीज के बारे में, डेफिनेटली यू विन ऑन द टॉप। तो पेशेंट को लेगा इस डॉक्टर ने इस पेशेंट को ठीक किया तो मे बी मेरे को भी ठीक कर दे, तो ये डॉक्टर के लिए भी एक बेनिफिशियल इफेक्ट है, तो डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए भी, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। इट प्ले के रोल इन डेवलपिंग द एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा, सपोर्टिंग द वैलिडेशन ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल थ्रू द क्लिनिकल आउटकम। एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदा की हम बात करते हैं, इसके थ्रू हम उसको डेवलप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी इन आयुर्वेदा, डॉक्यूमेंट द रियल लाइफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस, जैसा सर ने भी बताया, रिफ्लेक्टिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा प्रिंसिपल। हम कैसे आयुर्वेदा प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं अपने केसेस में, इसको रिफ्लेक्ट करता है। हेल्प इन द साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ द क्लासिकल कॉन्सेप्ट लाइक दोषा, धातु, अग्नि और संप्राप्ति। आप आयुर्वेदा केस स्टडी देखेंगे, बहुत सारी आपको मिलेगी, हमेशा उसमें होता है पेशेंट की प्रकृति क्या थी, उसमें धातु में कौन सी धातु दुष्टि थी, अग्नि कैसी थी, संप्राप्ति कैसी थी। तो इट हेल्प इन द साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट टू ना, ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द थियोरेटिकल नॉलेज एंड द क्लिनिकल प्रैक्टिस, provide the evidence for effectiveness of the आयुर्वेदिक इंटरवेंशन। तो केस रिपोर्ट आपको एक एविडेंस ही जनरेट कर रही है कि आयुर्वेदिक इंटरवेंशन का इस केस में इम्पैक्ट होता है। इंकरेज द क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल स्किल इन क्लिनिशियन, और ये केस रिपोर्ट क्रिटिकल थिंकिंग में भी हेल्प करती है, जो कोई दूसरा क्लिनिशियन को देखता है उसके एनालिटिकल स्किल में भी हेल्प करती है कि मेरे पास अगर ऐसा केस आएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसका डायग्नोसिस कैसे बना सकता हूँ, उसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, उसमें क्या आउटकम मिल सकते हैं पेशेंट को। So it may help in research, it may help in the practice, it may help in the academics. In all the three, it is helpful. Importance of case study, support the evidence generation, document the individualized treatment principle, preserve the classical clinical wisdom, useful when the RCT are difficult. जब RCT डिफिकल्ट पेशेंट में कोई रेयर केस हो, आपके पास इतने केसेस ना हो, तो केस रिपोर्ट बहुत यूजफुल हो सकती है। आयुर्वेदा की स्ट्रेंथ क्या, हमारे पास प्रकृति बेस्ड ट्रीटमेंट है, दो दृष्टि बेस्ड इंटरवेंशन है। So every patient provide a opportunity for clinical learning. Case study convert bedside observation to the publishable scientific knowledge. Important for documenting rare presentation, novel treatment approach, classical success in modern disorder. इसमें एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे गिरीश टोलू ने भी बोला था कि आप डॉक्यूमेंटेशन कहाँ कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन कहाँ जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हो, ऐसा ना हो आपने पब्लिश किया बोगस जर्नल में हो, जैसा ने बोला। तो इस वक्त बहुत सारे पीडियाट्रिक जर्नल अवेलेबल है, और अभी यूजीसी ने गाइडलाइंस भी डाल रखी है, तो लोग डेली किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश कर रहे हैं। तो कौन से जर्नल की डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो, बहुत एसेंशियल है। अगर आप डॉक्यूमेंट कर रहे हो किसी अच्छे जर्नल में, पीयर रिव्यू जर्नल में, तो देन इट्स रियली रीच द साइंटिफिक कम्युनिटी, इट रियली, इट्स अप्रोच इज रियली बिग। एंड इफ यू आर पब्लिशिंग इन द पीडियाट्रिक जर्नल, इन सम ऑफ द बोगस जर्नल, देन यू आर विद इन द, होता है ना, आप उसी मार्केट के अंदर तक ही हो, उससे बाहर निकल ही नहीं पाओगे। आप उससे बाहर निकलने के लिए आपको उससे ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ऐसे जर्नल पब्लिश करना पड़ेगा तो साइंटिफिक कम्युनिटी वैलिडेट करती है, उसको सुनती है। तो इट एसेंशियल। तो अगर हम केस रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं, थ्योरी से प्रैक्टिकल की अप्रोच हम जा रहे हैं, हमारे आयुर्वेद में जो लिखा है हमसे प्रैक्टिकल अप्रोच कर रहे हैं, उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं।
इसकी हेल्पफुल क्या रिसर्च पब्लिकेशन में हेल्प होती है हमारी। आजकल हम सबको अपना एपीआर बनना है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट बननी होती है, रिसर्च पब्लिकेशंस होती है, क्यूसीआई भी आ गया आज के टाइम में, तो हमें चाहिए। एकेडमिशियन को भी चाहिए कि हमारी पब्लिकेशंस हो, ताकि हमारी एपीआर, हमारे प्रमोशन हो पाए, हमारी सैलरी इनहेंस हो पाए। एकेडमिक लर्निंग होती है, आप डिसीज मैनेजमेंट रियल सिनेरियो में अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आप खुद भी अपने आप को एनहेंस करते हैं। क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होती है, आप डिफाइन कर पाते हैं डायग्नोसिस को, ट्रीटमेंट प्लानिंग को, पेशेंट की हैंडलिंग को। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प होती है। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस सपोर्ट करता है इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेदा इनटू द मॉडर्न रिसर्च फ्रेमवर्क। हम आयुर्वेदा को के एविडेंस को जनरेट कर रहे हैं पूरा। तो टाइप ऑफ केस रिपोर्ट क्या है? सिंगल केस रिपोर्ट। आपको बहुत सारी केस रिपोर्ट पबमेड में मिल जाएगी, एंड और सारे स्कोपस डेटाबेस में मिल जाएगी। तो सिंगल केस रिपोर्ट होती है, इसमें एक सिंगल पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है, डायग्नोसिस होता है, ट्रीटमेंट होता है, आउटकम होता है। इट इज टाइपिकली यूज टू रिपोर्ट द रेयर डिसीजेज, अनयूजुअल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नोवल थेराप्यूटिक अप्रोच जो हमने पहले बात की थी, अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट आउटकम जो हमने पहले बात किया था। अब आगे केस सीरीज। आपके पास एक जैसे ही तीन पेशेंट है, यूजली तीन या उससे ज्यादा पेशेंट भी हो सकते हैं, रिसीविंग द कंपेरेबल इंटरवेंशन एंड एग्जिबिटिंग सिमिलर क्लिनिकल फीचर। आपने एक जैसी इंटरवेंशन अप्रोच दिया और नो क्लिनिकल फीचर्स उनके एक जैसे ही है, तो आप उसकी केस सीरीज पब्लिश कर सकते हैं। केस सीरीज हेल्प टू आइडेंटिफाई द पैटर्न, क्या पैटर्न पेशेंट का आ रहा है, प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग प्रिलिमिनरी एविडेंस। आपका जो केस रिपोर्ट से थोड़ा बिगर स्ट्रॉन्गर एविडेंस प्रोड्यूस करता है केस सीरीज। एंड ऑफ वन स्टडी, इसमें क्या होता है, आपका एक सिंगल केस होता है जिसमें कभी आप ट्रीटमेंट देते हैं, कभी आप उसको कंट्रोल की तरह ट्रीट करते हैं। तो एक ही पेशेंट में मल्टीपल पीरियड में कंपेरेबल इंटरवेंशन चलती रहती है, ट्रीटमेंट कंट्रोल इंटरवेंशन, ताकि आप इफेक्टिवनेस ऑफ द पेशेंट देख पाए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, कि उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया भी है, ट्रीटमेंट ए दिया आपने, आउटकम मेजर किया, फिर वॉश आउट पीरियड अगर नीडेड है आपने दिया, ट्रीटमेंट बी दिया, फिर आउटकम में ट्रीटमेंट मेजर किया, कंपेयर किया रिजल्ट। केस एक ही था आपका। क्लिनिकल इमेज रिपोर्ट, इसमें क्या है, अगर मैक्सिमम ये ना आपकी स्किन डिसऑर्डर में काम आती है, या ऐसा केस जिसमें इमेजेस की स्टडी होती है। ए ब्रीफ रिपोर्ट center on a unique striking clinical image that has a educational value. The focus is on the visual recognition rather than the extensive clinical detail. कि इस केस की विजुअल रिकॉग्नाइजेशन कैसी थी, ना कि क्लिनिकल डिटेल्स के मुकाबले। ये मैंने एक टेबल्स है जिसमें बताया गया है कितने पेशेंट होते हैं। सिंगल केस रिपोर्ट में वन होता है, केस में मल्टीपल, एन ऑफ वन स्टडी में वन, और क्लिनिकल इमेज रिपोर्ट में वन एंड मोर हो सकता है। और जैसे एग्जांपल है रेयर डिसीज ट्रीटमेंट विद आयुर्वेदा, केस सीरीज में सीरीज ऑफ सोरेसिस पेशेंट ने, एनओवन स्टडी में पर्सनलाइज आईबीएस ट्रीटमेंट आपने दिया पेशेंट को, एंड क्लिनिकल इमेज रिपोर्ट में बिफोर एंड आफ्टर डर्मेटोलॉजी इमेज पेशेंट की थी। तो हमारा मेन जो आज का जो लेक्चर का इम्पोर्टेंस है, तो हम क्यों आज ये लेक्चर के ऊपर बात करें केस रिपोर्ट के ऊपर, ताकि हम जो रोगी को ट्रीट कर रहे हैं उससे हम रिसर्च तक जा सकें। तो ये एक फ्लो है जो मैंने समझा है अपनी तरफ से। आप क्लिनिकल, जो भी आपका पेशेंट आता है, आप क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन हर पेशेंट की करते हैं। क्या पेशेंट को ने आपको सिम्टम बताया, उसका डायग्नोसिस क्या बना, उसको डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेटली करते हैं। हमने पेशेंट की रिपोर्ट लिखते हैं, डायग्नोसिस लिखते हैं, उसके सिम्टम लिखते हैं, कब से है, सारी हिस्ट्री लेते हैं, ट्रीटमेंट प्लान लिखते हैं, उसे क्या हम इन्वेस्टिगेशन क्या आती है सब लिखते हैं। तो हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो हर डॉक्टर बनाता है। उसी डॉक्यूमेंटेशन का एनालिसिस करके उसका साइंटिफिक राइटिंग या किताब पब्लिकेशन की तरफ जाए, तो वो आपकी केस रिपोर्ट बन सकती है। तो गुड रिसर्च डिजाइन बिगन्स इन द ओपीडी एंड आईपीडी। आपका गुड रिसर्च डिजाइन है क्योंकि जो केस रिपोर्ट है आपका लोअर लेवल है, जो आपकी आरसीटी में आपकी आगे की क्लिनिकल ट्रायल के लिए हेल्पफुल हो सकता है। सिलेक्टिंग ए गुड केस, कैसे हम सिलेक्ट करें? फर्स्ट, रेयर डिसीज हो सकता है, अनयूजुअल प्रेजेंटेशन हो सकती है, हमने पहले ही बात की थी, डायग्नोस्टिक चैलेंज हो सकता है, नोवल आयुर्वेदिक इंटरवेंशन हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये सब अगर आपके पास इनमें से कुछ भी है तो आप आपके लिए वो गुड केस हो सकता है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आपको अब केस रिपोर्ट मिल जाएगी जर्नल्स में, मे बी पीडियाट्रिक जर्नल्स में बहुत सारे, जिसमें एक नॉर्मल आयुर्वेदिक इंटरवेंशन की एक नॉर्मल डिसीज में इम्पैक्ट देखा गया, जो डॉक्यूमेंट भी है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और मिला भी है, मगर वो केस रिपोर्ट की तरह पब्लिश किया गया।
तो आयुर्वेदिक क्लिनिकल डाटा में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? अगर हम आयुर्वेदिक केस रिपोर्ट की बात करें तो हम बात करते हैं रोगी परीक्षा की प्रकृति, विकृति, सार, संहनन, अग्नि, सात्म्य, सत्व, हार्डवेयर, निदान, संप्राप्ति। विदाउट द आयुर्वेदिक पैरामीटर केस रिपोर्ट लूज द आयुर्वेदिक एंटिटी। आपको इनमें से रिकॉर्ड करना जरूरी है क्योंकि आपको आयुर्वेदिक एंटिटी चाहिए आपकी केस की। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए केस स्टडी क्या होती है? इसके लिए केयर गाइडलाइंस है, स्पेशली आपको नेट पे आराम से मिल जाएगी केस रिपोर्ट गाइडलाइन। जब भी आप पब्लिकेशन के लिए जाते हैं तो हर रिपोर्टिंग, हर पब्लिकेशन आर्टिकल्स के, हर स्टडी डिजाइन के लिए एक गाइडलाइंस है। जैसे मैं ऑब्जर्वेशन स्टडी की बात करूं तो आपके पास स्टॉप गाइडलाइंस है। आरसीटी की बात करूं तो पिज्मा गाइडलाइंस है। एनिमल स्टडी की बात करूं तो अराइव गाइडलाइंस है। तो केस रिपोर्ट के लिए केयर गाइडलाइंस है। तो इसके अंदर क्या क्या स्पेशली कुछ पॉइंट्स होते हैं? टाइटल होना चाहिए आपका, अब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आउटकम, डिस्कशन, कंक्लूजन। अब इसमें से हम बात करूँ, अगर हम डॉक्टर जो पेशेंट देखता है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन भी नोट करता है, क्लिनिकल फाइंडिंग भी नोट करता है, डायग्नोसिस भी करता है, ट्रीटमेंट भी करता है, आउटकम भी करता है। इसमें से 5 चीज तो हर डॉक्टर नोट करता है अपने प्रिस्क्रिप्शन में। इसी जो नोट की हुई चीज के ऊपर हम डिस्कशन लिखते हैं कि इम्पैक्ट कैसे आया और कंक्लूजन क्या रहा। तो आधा काम तो डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ही कर लेता है, बस आधा काम उसे और करना केस रिपोर्ट के लिए। तो केयर गाइडलाइंस क्या है? Care guidelines for the case report helps the author to reduce the risk of bias, increase the transparency, provide the earliest signals of what works for which patient and under which circumstances. Care guidelines help increase the completeness, accuracy and transparency of the published case report, ताकि एक बायस को हम हटा पाए। इसलिए एक गाइडलाइंस बनाई गई है ताकि उसी को फॉलो करके आप केस रिपोर्ट पब्लिश करें, ताकि जो बायस है, जो एक ऑथर बायस होता है, हर कोई अपनी चीज को अच्छा बताना चाहता है, हर कोई बताना चाहता है मैंने ट्रीटमेंट दिया अच्छा हो गया, उस चीज को मिनिमाइज कर पाए। जो बायस जो हम होता है हमारे अंदर, इंटरनल बायस होती है ना, उसको हम कम कर पाए। तो ये केयर चेकलिस्ट है। तो ये आइटम्स है, टाइटल, कीवर्ड्स, ये हर आर्टिकल्स में वैसे भी होता है। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट में कोई रेफरेंसेस की जरूरत नहीं होती है। इंट्रोडक्शन, पेशेंट इंफॉर्मेशन, क्लिनिकल फाइंडिंग्स, टाइमलाइन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, follow up outcomes, discussion, patient perspective and the informed consent। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप बताना भी चाहूंगा। पेशेंट पर्सपेक्टिव, मैंने बहुत सारी केस स्टडी देखी है जब डॉक्टर पब्लिश कर सकता है, कर देता है, मगर पेशेंट का पर्सपेक्टिव नोट ही नहीं करता हूँ। तो पेशेंट को फील कैसा हुआ, उसे कैसा लगा आपकी ट्रीटमेंट के बाद, उसका भी अपना पर्सपेक्टिव है, वो भी लेना एसेंशियल है आपको केयर गाइडलाइंस के हिसाब से। और एज ए डॉक्टर भी आप पूछते हो ना पेशेंट से आपको कैसा लगा, इंप्रूवमेंट प्लस है, नेगेटिव, किस किस सिम्टम में इंप्रूवमेंट है, वही आपको यहाँ पे भी नोट करना है। इन्फॉर्म कंसर्न, आपने पेशेंट की कंसर्न ली है कि आपका इस केस को मैं पब्लिश करूंगा या नहीं, इसके लिए भी आपको वहां बताना एसेंशियल है केस रिपोर्ट में। तो टाइटल ऑफ ए केस स्टडी शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड इंफॉर्मेटिव। डायग्नोसिस, इंटरवेंशन ऑफ द प्राइमरी एंड डायग्नोसिस और इंटरवेंशन ऑफ द प्राइमरी फोकस फॉलोड बाय द वर्ड केस रिपोर्ट। आपको पेशेंट का डिसीज भी बतानी है, उसको इंटरवेंशन क्या दी है, और आपका केस रिपोर्ट शब्द है, केस स्टडी रिपोर्ट शब्द अभी केस स्टडी के टाइटल में आना चाहिए। जैसे मैंने जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटेड मेडिसिन की एक केस रिपोर्ट यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, 2022 में पब्लिश हुई थी। सक्सेसफुल आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ ट्रेमेटोफाइटोसिस, एक केस रिपोर्ट। अब यहाँ देखिए उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक मैनेजमेंट किया, उन्होंने इंटरवेंशन बता दिया, डिसीज बता दिए, डर्मेटोफाइटोसिस बता दिए, और केस रिपोर्ट शब्द भी आया। तो ये तीन चीजें एसेंशियल है आपको केस रिपोर्ट में पब्लिश करने के लिए टाइटल में। कीवर्ड्स क्या है? 2 to 5 keywords that identify the diagnosis and intervention in this case report। 2 से 5 कीवर्ड्स आपको बताने हैं जो डायग्नोसिस को आइडेंटिफाई कर रहे हो, इंटरवेंशन को कर रहे हो इस केस रिपोर्ट में। जैसे अभी जो हमने केस रिपोर्ट बताई थी उसमें इनकी कीवर्ड्स क्या थे? आयुर्वेदिक इंटरवेंशन, द्रुकुष्ठ, डर्मेटोफाइटोसिस, द्रुकुष्ठ, केस रिपोर्ट, ये आपकी कीवर्ड्स थे। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर हो सकता है। इसमें क्या आएगा? इंट्रोडक्शन आएगा पहले, अब्स्ट्रैक्ट में भी आपका एक स्मॉल, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस केस, इस केस में क्या यूनिकनेस थी, एंड व्हाट डज इट ऐड टू द साइंटिफिक लिटरेचर, और ये आपके साइंटिफिक लिटरेचर में क्या हेल्प कर रहा है, ये बताना भी बहुत एसेंशियल है। द पेशेंट मेन कंसर्न एंड द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग अब्स्ट्रैक्ट में आएगी। द प्राइमरी डायग्नोसिस, इंटरवेंशन एंड द आउटकम आएगा, एंड द कंक्लूजन, व्हाट आर द वन एट द मोड
टेक अवे लेसन फ्रॉम दिस केस रिपोर्ट। ये आपको एक एब्स्ट्रैक्ट में होना चाहिए। जैसे ये जो एब्स्ट्रैक्ट था इसी केस का, मैं उसी केस की बात कर रहा हूँ, सारी जगह मैं उसी से कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने ये केस रिपोर्ट भी इसलिए, क्योंकि जैम एक ऑथेंटिक जर्नल है, पीयर रिव्यू जर्नल है, पबमेड में इंडेक्स है। तो हम अगर उससे कंपेयर करके हम अपनी केस रिपोर्ट को पब्लिश करें या उससे समझे, तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं मे बी ना। तो इन्होंने बताया था फंगल इन्फेक्शन के बारे में, बताया कि वो कॉमन है डे टू डे प्रैक्टिस में, और उसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, और इसका हाई कितना प्रिविलेंस है इसके बारे में यहाँ बताया, और उससे आयुर्वेद में किससे रिलेवेंस की गई है। ठीक है ना। फिर इन्होंने बताया कि जो हमारे पास पेशेंट आया था उसके बारे में बताया। 62 ईयर ओल्ड मेल था, आपके पास टीनिया कॉर्पोसिस था, ऑन और ऑफ हो रहा था पेशेंट को, आयुर्वेदिक मेडिसिन के बाद उस आयुर्वेदिक मेडिसिन से ट्रीट किया गया, और उसके सिग्निफिकेंट चेंजेस मिले स्किन लीजन में, और जो इतने टाइम की ट्रीटमेंट दी गई, फॉलो अप किया गया, और कोई डिफरेंस नहीं मिला गया। और एंड में कंक्लूजन क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑफर एन इफेक्टिव अप्रोच टू मैनेज टीनिया कॉर्पोरिस। अब हम बात करते हैं, हमने टाइटल की बात कर ली, एब्स्ट्रैक्ट की बात कर ली, कीवर्ड्स की बात कर ली। टाइटल में क्या होना चाहिए था हमारा? डिसीज, इंटरवेंशन और केस रिपोर्ट शब्द आना चाहिए। कीवर्ड्स 2 to 5 होने चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट में भी इंट्रोडक्शन, ब्रीफ आना चाहिए, आपकी पेशेंट की इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट आउटकम एंड द कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं आपका मेन जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट है, मेन जो आपके मैन्युस्क्रिप्ट जहाँ से स्टार्ट होती है, इंट्रोडक्शन सेक्शन। तो बैकग्राउंड ऑफ द डिसीज क्या है? एक्सप्लेन द डिसीज, मेंशन द प्रिवलेंस एंड इंपॉर्टेंस, explain why this case is important, keep introduction short and focused, briefly summarize why this case is unique and may include medical literature differences। अब जब भी कोई डाटाबेस यूज करते हैं, कोई आर्टिकल लेते हैं, तो उसका रेफरेंस देना भी बहुत जरूरी है कि आपने ये आर्टिकल से ये डाटा लिया, आपने अब डिसीज के बारे में लिया, अगर आपने चरक संहिता से कोई उठाया तो किस पेज नंबर में कौन सा वर्ड्स आपने यूज किया, कौन सा स्थान था। एक रेफरेंस स्टाइल है, उसको फॉलो करके आप डाल सकते हैं कि हमने ददरू कुश लिया था, ददरू कुश के बारे में आयुर्वेद में ये बता रखा है, इसको हम मॉडर्न में टीनिया से कंपेयर करते हैं, टीनिया के बारे में मॉडर्न ये बोलता है, इसकी डिसीज का प्रिवलेंस ये बताता है इंडिया में वर्ल्ड वाइड, उसका डिफरेंस ये है, और मेडिकल लिटरेचर ये बोलता है इसके बारे में। जैसे इसी आर्टिकल का अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, उन्होंने बताया डर्मेटोफाइट्स क्या है, क्या बीमारी होती है इसके बारे में, उसका वर्ल्ड वाइड प्रिवलेंस बताया यहाँ पे कि ऑकर वर्ल्ड वाइड इन्फेक्शन विद दिस ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली कॉमन, एंड टीनिया इन्फेक्शन में रीच द एपिडेमिक proportion in geographical area with higher humidity, high population density and the poor hygienic condition। उसका इसमें दर्द कुछ से कंपेयर किया गया। आप देखिए हर जगह डिफरेंस दिया गया है, 1 2 3 4 5 6 7, और इसका भी एक स्टाइल होता है, हर जनरल टू जनरल वैरी करता है। किससे कंपेयर किया गया? दर्द कुछ से कंपेयर किया गया, उसके सिम्टम्स क्या थे यहाँ बताया गया उन्होंने, और आचार्य चरक ने क्या बोला, वाघभट ने क्या बोला है, चिरकालज बताया इसको, और इसके फीचर्स को हम फंगल इन्फेक्शन से कंपेयर कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या चीज आ गई हमारी? पेशेंट की इंफॉर्मेशन, जो हम पेशेंट के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो पहला क्या है? डी आइडेंटिफाई द पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, उसकी एज, आपको क्या क्या चीजें पेशेंट की नहीं बतानी यहाँ पे और क्या क्या बतानी है इसके बारे में हम बात करेंगे। पेशेंट की प्राइमरी कंसर्न, उनके सिम्टम क्या है हमें यहाँ बताना है। मेडिकल, फैमिली एंड साइको सोशल हिस्ट्री बतानी है, कोई जेनेटिक इंफॉर्मेशन है तो वो भी हमें बतानी है, कोई पास्ट इंटरवेंशन यूज किया है, देयर आउटकम हुआ है। मैक्सिमम केसेस में हम सब जानते हैं आयुर्वेदा में पेशेंट मैक्सिमम ना अब सबसे एंड में आता है, पहले एलोपैथिक में दिखाता है, बहुत सारे सिस्टम्स में दिखा देता है, फिर जब उसको लगता है कि अब एंड में आयुर्वेदा भी यूज कर ले, तो आपको ये भी बताना कि पेशेंट ने कौन कौन सी ट्रीटमेंट पहले ली है, कब कब ली है, और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या उससे ही पेशेंट को इम्पैक्ट आया था या सबसे उसको इम्पैक्ट नहीं आया फिर अब वो आयुर्वेद की तरफ आया। हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं इसमें? पेशेंट की एज बता सकते हैं, उसका सेक्स, उसका ऑक्यूपेशन, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, मेडिकल एंड द फैमिली, पेशेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच ऑल पर्सन आइडेंटिफाइड हैव बीन रिमूव। आपको ऐसी सारी पर्सन आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन से रिमूव करने से पेशेंट को रिकॉग्नाइज किया जा सके। जैसे पेशेंट का नेम, उसके इनिशियल, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर, उसका आधार नंबर, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें नहीं बताना, फोटोग्राफ शोइंग द फेस unless the consent taken and the eye should be covered too, exact date of birth and any unique identifying detail आपको मेंशन नहीं करनी है यहाँ पे।
चाहे मैं एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, मिस सुमन देवी फ्रॉम मुरादपुर सफरिंग फ्रॉम मधुमेह। ऐसा लिखने के बजाय हमें ये लिखना चाहिए, ए 52-year-old फीमेल प्रेजेंटिंग विद द फीचर ऑफ मधुमेह। हमने पेशेंट की आइडेंटिटी थी सुमन देवी, उसको रिमूव करना है, कौन सी एरिया से थी वो रिमूव करना है। जैसे इसी केस में अगर हम बात करें, इन यहाँ पे था 62-year-old मेल की बात की, उसका नाम नहीं बताया, और विद कंप्लेंट ऑफ रैशेस फेस एंड द राइट हैंड विद इचिंग सिंस 1 year। इस पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ बताई गई है, एंड 1 year सिम्टम बताया, ऑन और ऑफ हो रहे थे उसको पास्ट 1 year से, रिकरेंस था 15 days से, प्योर टू ओपीडी विजिट, एंड उसको क्या ट्रीटमेंट चल रही थी वहाँ यहाँ पे बताया गया। एग्जामिनेशन में उसकी प्रगति क्या थी, जो हमने बताया था आयुर्वेद में जो हमें पैरामीटर्स लेने पड़ते हैं उसके बारे में हमें बताना है। अग्निबल क्या था पेशेंट का, शारीरिक बल क्या था, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में क्या रिपोर्ट आई पेशेंट की, हमने सब यहाँ बतानी है। अब क्लिनिकल फाइंडिंग, प्लीज डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट फिजिकल एग्जामिनेशन एंड द इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फाइंडिंग। अब पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या मिला और क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या मिला, ये हमें यहाँ बताना है। हमने पेशेंट को एग्जामिन किया, कोई और हमने स्पेसिफिक एग्जामिनेशन किया तो वो मेंशन करनी है, हमने ये हमें किया था और पेशेंट की ये फाइंडिंग मिली। जनरल एग्जामिनेशन करनी है, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करनी है, वाइटल साइंस और रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन जो भी रिसीव बाय एसेंशियल थी। आयुर्वेदा के हिसाब से प्रकृति, विकृति, अग्नि और कोष्ठ, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया था इस स्टडी में कि पेशेंट की प्रकृति कफवात थी, अग्निबल अवर था, शारीरिक बल मध्यम था, सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन में कोई अबनॉर्मलिटी नहीं थी, उसकी इन्वेस्टिगेशन ही आई थी। अब आगे हमारा टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब पेशेंट कैसे कैसे फ्लो हुआ, आपके पास कब आया, उससे पहले क्या था, कब कब क्या क्या किस किस साल में क्या क्या ट्रीटमेंट ली, और आपके पास आने के बाद क्या क्या हुआ। तो हिस्टोरिकल एंड द करंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस एपिसोड ऑफ केयर ऑर्गेनाइज एज ए टाइमलाइन। जैसे इस केस में 2016 में पेशेंट को हाइपरटेंशन था, एम्लोडाइपिन स्टार्ट हुई थी, 2017 में स्किन रैशेज डेवलप्ड हुए उसे, 2018 में भी अपीयरेंस ऑफ रैशेज भी सीवियर इचिंग थी, और फिर 2019 में आयुर्वेद की तरफ वो मूव किया, और जो ट्रीटमेंट थी वो इंटरवेंशन दी डे 0 में। तो ये सब हमें मेंशन करना है एक टेबल्स के थ्रू, या फिर आप एक फिगर के थ्रू भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा भी आपको इजी लगे, और जनरल की गाइडलाइंस के हिसाब से। डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, लेबोरेटरी टेस्टिंग क्या कहती है, इमेजेस या सर्वे कुछ हुआ है, डायग्नोस्टिक चैलेंजेस क्या है इस केसेस में, डायग्नोसिस क्या, प्रोनोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अगर इस केस के। तो मॉडर्न डायग्नोसिस भी बताना है आपको, आयुर्वेदिक डायग्नोसिस भी बताना है, जैसे प्राइमरी इंसोम्निया और अनिद्रा का एग्जांपल में दिया है। जैसे इस केस में इन्होंने मेट्रोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन बताई है पेशेंट की, क्या क्या काउंट आया, रैशेस कैसे थे उसके, लोकल एग्जामिनेशन में क्या मिला, मल्टीपल सर्कमसाइज रैशेस विद सेंट्रल क्लीयरिंग ऑफ ब्लीडिंग साइज, सिमेट्रिकली ओवर द नी जॉइंट फेस एंड ऑन द राइट रिस्ट जॉइंट। पेंडिंग क्या थी, इधर उधर होता पेशेंट को। अब हमने इंट्रोडक्शन कर दिया, पेशेंट की इंफॉर्मेशन दे दी, क्लिनिकल फाइंडिंग देख ली, डायग्नोसिस देख लिया, टाइमलाइन देख ली। अब हमने क्या, हम ट्रीटमेंट क्या दे रहे हैं पेशेंट को। तो टाइप ऑफ थेरापेटिक इंटरवेंशन क्या है, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल या प्रिवेंटिव, जो भी हमने दिया वो मेंशन करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द थेरापेटिक इंटरवेंशन, जो हम इंटरवेंशन दे रहे हैं उसकी डोजेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, ड्यूरेशन क्या है, हम कितनी डोज में दे रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ में दे रहे हो, कितने टाइम के लिए दे रहे हो वो इंटरवेंशन, वो स्पेशली मेंशन करनी है आपको। चेंजेस इन द थेरापेटिक इंटरवेंशन विद द एक्सप्लेनेशन, अगर आपने 15 दिन बाद पेशेंट की इंटरवेंशन को चेंज किया तो मेंशन करना है और क्यों किया, उसके लिए एक रीजन होगा ना। पेशेंट को इम्पैक्ट कम था तो आपको लगा ये ऐड कर दूं, जो भी आपको लगा, जो लॉजिक्स थे वो आपको मेंशन करना है। मेंशन क्लियरली द ड्रग नेम, डोज, ड्यूरेशन, किस रूट से दी जा रही है ये भी मेंशन करना है, डाइट की एडवाइस और लाइफस्टाइल एडवाइस आपको मेंशन करनी है। जैसे इस केस में यहाँ पे टाइमलाइन में बता देता है इंटरवेंशन क्या दी थी। आरोग्य वर्धनी दी है 250 mg विद लुकवार्म वाटर आफ्टर द फूड फॉर 42 days, सब मेंशन किया इन्होंने। किशोर गुगुल, निशा अमलकी, जो भी पेशेंट को दिया गया वो सब इन्होंने मेंशन किया। डाइटरी एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्सप्लेन की गई है। ये पेशेंट की ट्रीटमेंट में कब कब क्या क्या चेंजेस आया है, 27/2 को, 6/3 को 2019 को क्या था, 13/3 को ट्रीटमेंट में कुछ ऐड हुआ है क्या, 28-20/3 को कुछ ऐड हुआ है क्या, 27 को, 3/5 को मेडिकेशन बंद हो गई है, 4/1 को मेडिकेशन नहीं थी, फॉलोअप चल रहा था, ये सब आपको मेंशन करना है।
follow up and outcome. Clinician and the patient assess the outcome if available. क्लिनिशियन को भी और पेशेंट को भी अपने आउटकम को असेस करना है अगर अवेलेबल है तो। इंपॉर्टेंट फॉलो अप डायग्नोस्टिक एंड अदर टेस्ट रिजल्ट। अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है और आपके पास जैसे आप मधुमेह की बात करते हैं तो पेशेंट को अच्छा इंपैक्ट आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मगर उसकी क्या रिपोर्ट में भी इंपैक्ट आ रहा है, फास्टिंग ब्लड शुगर HbA1c क्या इम्पैक्टफुल आ रहे हैं, उसमें भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको वो भी मेंशन करना है, वो टेस्ट भी दोबारा करवाने हैं। इंटरवेंशन एडहेरेंस एंड द टॉलरेबिलिटी। पेशेंट जो इंटरवेंशन ले रहा था क्या उसको फॉलो कर रहा था प्रॉपरली, डेली ले रहा था, क्या उसने कहीं मिस तो नहीं किया, वो सब भी मेंशन करना है। एडवर्स एंड द अनएंटिसिपेटेड इवेंट, ये सब भी आपको मेंशन करना है। अगर पेशेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट आता है या इवेंट होता है उसके साथ, तो वो भी आपको मेंशन करना है। तो फॉलोअप इंक्लूड क्या करता है, वीकली चेंज, सिम्टम इंप्रूवमेंट, कंप्लायंस एंड एडवर्स इफेक्ट। आउटकम में क्या, सब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट, ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग, लैब चेंजेस एंड द स्केल्स एंड स्कोर। आपने कुछ जैसे पीएस का स्कोर चेक कर लिया, बिफोर एंड आफ्टर स्लीप का पेशेंट था, आपने HbA1c में इम्पैक्ट देख लिया, लैब रिपोर्ट में इम्पैक्ट देख लिया, और कोई स्कोर्स या स्केल्स आपने यूज किए, जैसे हमने पीएस का स्कोर है, इंसोम्निया सीवियरिटी स्केल है, इस सब को आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ फॉलोअप बताया गया था, कोई मेडिकेशन नहीं दी गई, जस्ट लाइक दैट। उन्होंने देखो डाइट भी स्पेशली बताई है, डाइट, अवॉइड द एक्सेसिव सॉल्टी सोर एंड द स्पाइसी फूड, मिल्क, कर्ड, जैगरी एंड द फिश, अवॉइडेंस ऑफ द डे स्लीप एंड एक्सेसिव सन एक्सपोजर। ये सब मेंशन। आपको भी अगर कोई केस रिपोर्ट लिखते हो तो आपको बताना है अपने डाइट पे क्या फॉलो किया है, क्योंकि आयुर्वेद स्पेशली डाइट और लाइफस्टाइल को ही फॉलो करता है, और डाइट और लाइफस्टाइल का भी हमारी बॉडी पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अब सब कुछ करने के बाद हमारे पास मेन आ गया, हमने इंटरवेंशन दे दी, पेशेंट का आउटकम देख लिया क्या हो रहा है, फॉलो अप कैसा था। अब हम आगे डिस्कशन, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन इन योर अप्रोच टू दिस केस। आपकी स्ट्रेंथ क्या आती है, आपकी लिमिटेशन क्या आती है। डिस्कशन ऑफ द रिलेवेंट मेडिकल लिटरेचर, जो आज मेडिकल लिटरेचर डिसीज के बारे में क्या और आपकी ट्रीटमेंट क्या बताती है। रैशनल ऑफ योर कंक्लूजन, प्राइमरी टेक अवे लेसन फ्रॉम दिस केस रिपोर्ट इन ए वन पैराग्राफ कंक्लूजन। अब आपको डिस्कशन में मेंशन क्या करना है, व्हाई दिस ट्रीटमेंट वर्क, ये आपने ट्रीटमेंट दी थी आरोग्यवर्धिनी वटी या किशोर गूगल, ये इसने काम कैसे किया, इसके अंदर ऐसे क्या इंग्रेडिएंट थे जो काम करते थे। तो आपको लिटरेचर पढ़ने पड़ेंगे, इसके इंग्रेडिएंट कैसे काम करते थे, प्रीवियस लिटरेचर पढ़िए, इनके कुछ आर्टिकल्स हो गए कि अगर आरोग्यवर्धिनी वटी में कुटकी है तो कुटकी क्या काम करता है, क्या इसका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट है, क्या इसका स्किन डिसीज में इफेक्ट है, एंटी फंगल इफेक्ट भी है क्या। आपको नेट पे डाटा मिल जाएगा, आपको डाटा बेस से, पबमेड या स्कोपस से। आयुर्वेदिक एक्सप्लेनेशन देनी है आपको, आरोग्यवर्धिनी वटी का क्या आपका विपाक था, क्या उसका प्रभाव है, क्या वीर्य है उसका, कैसे वो काम करती है आयुर्वेद के हिसाब से, मॉडर्न एक्सप्लेनेशन देनी है उसकी, और कंपैरिजन करना है विद द लिटरेचर, साइंटिफिक नॉलेज क्या कहती है जॉब लेवल लिटरेचर से, और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या था। आपकी किसी भी केस रिपोर्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन होता है डिस्कशन, आपको इसको बहुत ध्यान से राइट करना है। जैसे इसी केस में जो हमने आप दिखाया था टाइटल से, यहाँ जो केस था इसमें प्रोराइटिस, अर्थिमा और सर्कुलर पैचेस थे, स्टैब्लिश थे। सिम्टम्स के बेस में इन्होंने बताया कफ पित्त कुष्ठ था, ट्रीटमेंट दी गई दोष और दृष्टि के हिसाब से, और आरोग्यवर्धिनी वटी के बारे में बताया, कुष्ठ, मेदो दोष, यकृत विकार और जीन विकार में इंडिकेटेड आयुर्वेद बताता है, और इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये कैसे काम करते हैं। नीम एंटीसेप्टिक इफेक्ट है नीम का, और पाचन इफेक्ट है, आम विष को दूर करता है। ऐसे आपको अपने केस की जो इंग्रेडिएंट आपने मेडिसिन दी है उसके बारे में आपको बताना है। आपको लिटरेचर मिल जाएगा, आयुर्वेदिक लिटरेचर आपको संहिताओं से मिल जाएगा, मॉडर्न लिटरेचर आपको डाटाबेस से मिल जाएगा। जैसे आरोग्यवर्धिनी वाटी के बारे में बताया गया, कृमि मुद्गर रस के बारे में बताया गया, इसके इंग्रेडिएंट क्या है, कैसे काम करते हैं, विद रेफरेंसेस। आप जब भी किसी डाटाबेस को, किसी आर्टिकल को से डाटा लेते हैं, उसको यूज करते हैं, उसको रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। एंड में आगे कंक्लूजन। कंक्लूजन इस केस का क्या था, दिस केस स्टडी शो द डर्मेटोफाइटोसिस कैन बी मैनेज सक्सेसफुली विद द आयुर्वेदिक इंटरवेंशन। No adverse effect pertaining to the prescribed drug was reported. Ayurveda medicine offered a good approach to manage the dadru. But to establish this fact, further study on a larger sample is required. उन्होंने खुद बता दिया यहाँ पे भी कि अगर आपको इस फैक्ट को स्टैब्लिश करना है तो लार्जर स्टडी करनी है, मतलब ये एक बेस है जिसके ऊपर आप और स्टडियां कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो मैंने बताया था पेशेंट पर्सपेक्टिव है। द पेशेंट शुड शेयर देयर पर्सपेक्टिव ऑन द ट्रीटमेंट दे रिसीव। पेशेंट बताते हैं ना आपको, जब भी आपके पास आता है कि मेरे को इतना इम्पैक्ट आया है डॉक्टर साहब, मेरे को इस चीज में सिम्टम में इंप्रूव आ गया, मगर ये सिम्टम अभी ठीक नहीं हुआ है, इस मेरे को इस चीज में अच्छा लग रहा है, तो वो सब आपको पेशेंट की लैंग्वेज में ही नोट करना है और उसमें केस रिपोर्ट में
मेंशन करना है। जैसे इसी केस की बात थी, द पेशेंट पर्सपेक्टिव, शायद सॉरी किसी दूसरे आर्टिकल का पेशेंट पर्सपेक्टिव होगा, was recorded in July 2024-22. The patient has conveyed deep appreciation and satisfaction with the quality of treatment received. As a result, he can now effortlessly carry out daily tasks that were previously hindered by the debilitating migraine headache. तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगा इसमें। Informed consent, the patient should give the informed consent, provided if requested. आपको प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। The informed consent was obtained from the patient before all the treatment procedure and for the publication. और आज के टाइम में डिक्लेरेशन ऑफ यूज ऑफ जनरेटेड एआई इन द साइंटिफिक राइटिंग, so corresponding author declared that no tool, service and AI were used, only the basic tools such as Grammarly app were used for the checking grammar. आपको ही मेंशन करना पड़ेगा। अब अगर आप केस रिपोर्ट राइट कर रहे हैं तो कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे केयर राइटर्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं केस रिपोर्ट राइटिंग को, आपके लिए इजी हो जाएगा। इसमें आपको डाटा फिल करना है, जैसे जैसे आपको पेशेंट ने मिला वो बहुत चीजें आपको बना के दे देगा। Submission to a scientific journal. Follow the author guidelines. Journal submission requirement when writing and submitting your case report to the scientific journal. आपको जर्नल के हिसाब से भी अपनी रिक्वायरमेंट, आपकी राइटिंग को चेंज करना पड़ सकता है ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। यू मे विश टू कॉन्टेक्ट द जर्नल बिफोर सबमिटिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट। डाउनलोड ए पार्शियल लिस्ट ऑफ जर्नल दैट एक्सेप्ट द केस रिपोर्ट। मैं आपको जर्नल से बताऊंगा आयुर्वेद के जो केस रिपोर्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं और अच्छे डाटाबेस में है। Journal that do not accept case report may publish case report as a component of other article, में भी हो सकता है। कॉमन मिस्टेक क्या है जो हम करते हैं केस रिपोर्ट में? इनकम्प्लीट हिस्ट्री होती है हमारी, फॉलोअप नहीं होता है, डिस्कशन पुअर होता है, अनसपोर्टेड कंक्लूजन होता है, कंसल्ट नहीं होती है और लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है। क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी जब तक नहीं आएगी, जब तक, क्योंकि सब्जेक्टिव पैरामीटर बहुत बायस हो सकते हैं, बहुत ऑब्जेक्टिव पैरामीटर बायस नहीं हो सकते हैं। तो अगर जैसे आपका कोई स्किन का पेशेंट है, आप उसकी पे केस रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए उसकी पिक्चर लेनी बहुत जरूरी है। और जिस एंगल में आपने पहले पिक्चर ली थी, जिस एरिया की ली थी, उसी एरिया की उसी एंगल में, उसी लाइटनिंग में आपको दोबारा लेनी है, ताकि जब कंपेयर किया जाए तो आपको इम्पैक्ट दिखाई दे। बहुत सारे आर्टिकल रिट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है, उन्होंने पहले लेफ्ट हैंड की ली थी, बाद में राइट हैंड की ले ली इमेज। बहुत सारे रिव्यूअर उनको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि क्या था, पेशेंट ने पहले कम लाइटनिंग में वैल्यू रखी थी, बाद में हाईलाइट, मतलब हाई उसमें लाइटनिंग अच्छी थी, तो आपको क्लियर नहीं हो पाता कि इम्पैक्ट पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, मगर आप ना उसे मैनिपुलेट कर देते हैं इमेजेस के थ्रू। तो आपको ये भी ध्यान रखना जब आप स्किन केस में स्पेशली केस रिपोर्ट लिख रहे हो, तो जिस एंगल में, जिस लाइटनिंग में, जिस हैंड की या जिस एरिया की आपने इमेज दी थी, बाद में भी उसी एरिया की, उस हैंड की उसी लाइटनिंग में, उसी एंगल के की में लेने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि जो कॉमन मिस्टेक्स है आपकी वो कम हो जाए। पब्लिकेशन वैल्यू क्या है आपकी केस रिपोर्ट के लिए? एकेडमिक ग्रोथ होती है हम सबकी। एपीआर आजकल सबको चाहिए, आजकल क्यूसीआई है, हर हर आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए क्यूसीआई एसेंशियल हो गया, ताकि वो अपनी मतलब सीट्स को बढ़ा सके, आपकी जो स्टूडेंट से चार्जेस लेते हैं उसको एनहेंस कर पाए। तो एकेडमिक ग्रोथ के लिए, एविडेंस जनरेशन के लिए भी है, और इम्प्रूव द साइंटिफिक राइटिंग स्किल, आपकी खुद की राइटिंग स्किल इंप्रूव होती है। तो मैं तो ये कहूंगा, आप किसी के लिए मत कीजिए, अपने खुद के लिए कीजिए। मैं हमेशा ये मानता हूँ, आपकी इंप्रूवमेंट होगी तो आपके कॉलेज की इंप्रूवमेंट होगी। तो डू फॉर योर सेल्फ। सिलेक्टिंग ए जर्नल, ये कुछ जर्नल्स है जिसमें हम पब्लिश कर सकते हैं। जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जर्नल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज आईयू, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट, जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एनआईए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का जयपुर का, उसमें भी आप पब्लिश कर सकते हैं। जेडीआरए से जर्नल ऑफ ड्रग, जर्नल ऑफ ड्रग रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, उसमें आप पब्लिश कर सकते हैं। तो के मैसेज क्या है? क्लिनिकल प्रैक्टिस रिसर्च, अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप रिसर्च कर रहे हैं, इनडायरेक्टली आप रिसर्च कर ही रहे हैं। तो एवरी रोगी कैन बिकम ए सोर्स ऑफ एविडेंस व्हेन ऑब्जर्व साइंटिफिकली। हर रोगी आपका एविडेंस क्रिएट कर सकता है जब आप उसे साइंटिफिकली ऑब्जर्व करेंगे तो। बस। सो थैंक यू। एवरी पेशेंट हैज ए स्टोरी, व्हेन डॉक्यूमेंटेड विद साइंटिफिक राइगर द स्टोरी बिकम एविडेंस दैट एडवांस आयुर्वेदा एंड द इम्प्रूव द पेशेंट केयर। थैंक यू। Thank you so much, sir, for your so valuable and thoughtful lecture. Uh,
This lecture will help to all the undergraduate and postgraduate students for writing the case study in future. Now, I ask to every participant clear the doubt if you have any. You have still choice to drop the question in chat box. Now, I will start the question and answer session if you have any. Sincere request to all delegates, all participants, please raise your queries if you have any. मैं इस मंच के थ्रू बस ये और बोलना चाहूंगा आज वैसे कि आज के इस लेक्चर का आउटकम जब ही होगा जब हम सब एक केस रिपोर्ट लिखने की कोशिश स्टार्ट करें और कोशिश करें पब्लिश हो जाए। आपको कुछ भी डाउट हो तो गिरीश टिल्लू सर जैसे एकेडमिशियन रिसर्चर हमारे पास है, जैसे सर ने बताया कि आप कहीं भी हेल्प ले सकते हैं। आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी बहुत भी कुछ हेल्प कर पाया तो इट इज आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। तो आप कोशिश कीजिए बस एक केस रिपोर्ट लिखने की स्टार्टिंग करें क्योंकि केस रिपोर्ट बहुत ईजी है, जो मैं मानता हूँ पर्सनली, मैं यही लगता है। मेरे सीनियर्स ने मेरे को ये बोला केस रिपोर्ट बहुत ईजी है, अंकुल पब्लिश कर। और मेरी पहली जो मेरी पबमेड ने पब्लिश है जैम में, वो केस रिपोर्ट ही है पहली। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके पास कोई क्वेरी है या फिर आपको कुछ दिक्कत है इस केस स्टडी से रिलेटेड, तो आप कृपया आप अपने आंसर जो क्वेश्चंस है वो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो या फिर अपने आप को अनम्यूट करके आप पूछ भी सकते हो। शायद किसी को कोई कुछ क्वेरी नहीं है। सो हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हम इस वेबिनार के आखिरी पड़ाव में अभी आके खड़े हैं। हम आज के वेबिनार के औपचारिक समापन हेतु वैद्य संतोष जी गटने सर को मैं आमंत्रित करता हूं। वैद्य संतोष जी गटने सर आरोग्य भारती पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के सचिव है। साथ साथ ही वे महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ के सीनेट सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य हैं। वे एक सफल आयुर्वेदिक चिकित्सक एवं आयुर्वेद औषध निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। सो मैं वैद्य संतोष जी गटने सर को आमंत्रित करता हूं कि वो समापन करें। सभी को नमस्कार। आज के आयुर्वेदाभ्यसनम के इस सत्र के व्याख्याता डॉक्टर अंकुर कुमार जी, आयुर्वेदाभ्यसनम इस व्याख्यानमाला के आयोजकों में उपस्थित सारे कार्यकर्ता बंधुगण, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन आयाम के प्रांत के प्रमुख डॉक्टर मनोज चौधरी, आरोग्य भारती के प्रांत के औषधि वनस्पति प्रचार प्रसार आयाम के प्रमुख डॉक्टर देवदत्त देशमुख जी, आज के इस सत्र के समन्वयक डॉक्टर जय आडे सर, इस आयोजन में बहुत ही अच्छा सहभाग देने वाले डॉक्टर रेशमा कुंभारे, डॉक्टर अविनाश लबाना, डॉक्टर राहुल गवड़ी, डॉक्टर आनंद मादगुंडी, ऐसे अनेक आरोग्य भारती के सक्रिय कार्यकर्ता जो इस विषय में बहुत ही अच्छा आयोजन कर रहे हैं। आरोग्य भारती के कार्यकर्ता के नाते और भागीरथी मेडिकल फाउंडेशन के कार्यकर्ता के नाते दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से काम कर रही है और एक अच्छा उदाहरण आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारे सामने रख रही है। विद्यार्थियों का तथा प्रैक्टिशनर्स का बहुत ही अच्छा
प्रतिसाद इस व्याख्यान श्रृंखला को है, क्योंकि जो विषय इस व्याख्यान माला में चुने जाते हैं, आयुर्वेदाभ्यसनम में चुने जाते हैं, वह विषय बहुत ही उपयुक्त है। आज के विषय के बारे में कह सकूं तो स्थिति ऐसी है कि बहुत ही अच्छा विषय रखा है। मैं मेरी अवगुण आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे गुरु रहे एक वैद्य है, वो कहते थे जो प्रैक्टिस कर सकता है वो पढ़ाने के लिए उसके पास समय नहीं है, लिखने के पास समय नहीं है, और जो लिख सकता है उसके पास पेशेंट जाते नहीं है। तो जब हम सीख रहे थे कॉलेज में, तब शायद ऐसी परिस्थिति रही होगी जिसके कारण हमारे गुरु ने ऐसा कहा है। लेकिन जो भी लिखा हुआ ज्ञान हमारे पास अभी उपलब्ध है, वह सारा लिखा हुआ ज्ञान प्रैक्टिशनर्स ने लिखा हुआ है। जो दोनों काम कर सके ऐसे लोगों ने ये किया है, पढ़ा भी सके और प्रैक्टिस भी कर सके, ऐसे दोनों गुण सब में होने चाहिए। मैंने मेरा अवगुण बताया कि मैं प्रैक्टिस तो करता हूं लेकिन लिखने के लिए समय बिल्कुल नहीं रहता। आज की इस व्याख्यान में बहुत सारे विद्यार्थी दिख रहे हैं, तो आप सबको एक विनती है कि हम जैसे अवगुण बताने की स्थिति आपकी 25 साल बाद न आए। मैंने मेरे ही पेशेंट सुना है, स्टैटिस्टिक्स के पीएचडी है वगैरह, तो अरे डॉक्टर साहब आप डॉक्यूमेंटेशन करिए, केस प्रेजेंटेशन कीजिए, तो हर साल एक एक पीएचडी निकल जाएगी आपकी, इतना अच्छा डाटा आपका हो सकता है। तो यह पेशेंट से जो फीडबैक आया है उस पर भी मैं काम नहीं कर सका, तो यह मेरा अवगुण है कि मेरे पास लिखने के लिए समय नहीं है। तो आप सबको एक विनती है कि सारे पेशेंट को देखते हुए, सबको अच्छी ट्रीटमेंट देते हुए आप अपने केसेस का डॉक्यूमेंटेशन अवश्य करें। इस बारे में मुझे बिल्कुल फॉलो न करें क्योंकि मैं करता नहीं हूं। इस विनती के साथ आज के समापन में मुझे जो कहना था वो मैं पूर्ण करता हूं। सबको हृदय तल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। सभी से एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि आप भी आपका जो कुछ भी है वो लिखना स्टार्ट करें। आप धीरे धीरे उसमें जो है बाद में आप उसको सुधार कर सकते हो। आप लिखना स्टार्ट करोगे तो उसमें आप एक ना एक दिन पूरा पेपर जो है वो आप अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकते हो। तो आज से ही क्यों ना आज से ही हम ये प्रण ले कि कुछ ना कुछ लिखना स्टार्ट करें। So now I would like to thanks to Arogya Bharati Paschim Maharashtra Prant for giving the permission to conduct the webinar. I am also thankful to Dr. Girish Tilu sir for having us for today's webinar as a guest person. I sincerely thanks our guest speaker Dr. Ankur Tawar sir for sparing valuable time and delivering insightful session. Special thanks to all participants and students who join us today. I also acknowledge the efforts of organizing team, technical staff whose dedication and ensure the smooth conduct of this webinar. With that, we conclude today's session by Shanti Mantra.